اساتذہ کرام آگے بیٹھ بہت اچھی بنانا. اچھا تصویر بھی کھینچ لی ہے. گروپوں میں ڈالنا. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب پروردگار رب العالمین کے نام جس کے قبضے میں میری اور آپ سب کی جان ہے، اور کروڑہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، اساتذہ کرام اور مہمان گرامی، السلام علیکم. آواز نہیں ہے بیٹا، السلام علیکم. گڈ. آج کا دن ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث احترام ہے. آج کا دن ہم ثقافتی دن منا رہے ہیں جس میں آج اجرک صرف اوڑھی نہیں جاتی بلکہ ایک پہچان بن جاتی ہے. جس دن سر پہ سندھی ٹوپی صرف ٹوپی کے طور پہ نہیں ہوتی بلکہ ایک تاریخ سنبھالے ہوئے ہوتی ہے. تو اسی تاریخ کو آج ہم یہاں پر منانے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں گے آپ لوگوں میں سے ہی بچے اس اسٹیج پر آ کے وہ رنگ بکھیریں گے جس میں اجرک اور سندھی ٹوپی چلا چلا کے کہے گی کہ میں زندہ تھی، میں زندہ ہوں اور میں زندہ رہوں گی. تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کروں گا، جس میں آپ 9th A سے موئز کو سنیں گے. تلاوت کلام پاک سے میں موئز کو دعوت دوں گا، تلاوت کلام پاک کے لیے میں موئز کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہمیں باری تعالیٰ کی بابرکت صورت میں ہمیں دوسرا روحانی تحفہ پیش کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہیں جماعت دہن کے ہونہار طالب علم اویس ادیب۔ تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہ 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 کرتی گئے پھولوں کی ردا۔ اللہ 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 کرتی گئے پھولوں کی ردا۔ اللہ 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 کرتی گئے پھولوں کی ردا۔ اللہ اللہ کرتی گئے پھولوں کی ردا۔ اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے بڑا۔ اللہ 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 بادل آسماں پہ نکل۔ اللہ 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 بادل آسماں پہ نکل۔ اللہ اللہ بادل آسماں پہ لکھا۔ اللہ اللہ بادل آسماں پہ لکھا۔ اللہ اللہ پربت کے تاروں کی ردا۔ اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رغبا وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رغبا وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رغبا۔ اللہ اللہ سورہ یاسین
کے وہ سورغ رغبا، وہ سورغ یاسین کے وہ سورغ رغبا، وہ سورغ یاسین کے وہ سورغ رغبا، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کے گدا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کے گدا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نہایت محترم سر صدام کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دلوں کو منور فرمائیں سر صدام سے۔ سبحان اللہ۔ اڑی دل سا دعا کر مٹھڑی ماں، اڑی دل سا دعا کر مٹھڑی ماں، ونی ملک مدینے جو گھٹیوں گھما، اڑی دل سا دعا کر مٹھڑی ماں، ونی ملک مدینے جو گھٹیوں گھما، اڑی دل سا دعا کر۔ کھڑو ہتھڑا خدا دے بھاگ ورے، دل کو محمد کان کرے، کھڑو ہتھڑا خدا دے بھاگ ورے، دل کو محمد کان کرے، دیکھا نہ تم کا منہ کے تما، بیکانا تھم کا منہ کے تما، ونی ملک مدینے جو گھٹیوں گھما، اڑی دل سا دعا کر۔ ارادو ہو جو رات بنیا، ماں پڑھندو نبیت نات بنیا، ارادو جو رات بنیا، ماں پڑھندو نبیت نات بنیا، جی پہنچیو تے پھر بھات بنیا، جے پہنچیو تے پھر بھات بنیا، آہن دردن لاتیوں ڈھاڑیوں تھما، اڑی دل سا دعا کر مٹھڑی ماں، ونی ملک مدینے جو گھٹیوں گھما، اڑی دل سا دعا کر۔ اڑو عشق وٹو تمام مکھے، لگے ہتڑے رہڑو تو حرام مکھے، اڑو عشق وٹو تمام مکھے، لگے ہتڑے رہڑو تو حرام مکھے، کان سکھ جی گھڑی تو ہتڑے سما، کان سکھ جی گھڑی تو ہتڑے سما، آہن دردن لاتیوں ڈاڑھیوں تھما، اڑی دل سا دعا کر مٹھڑی ماں، ونی ملک مدینے جو گھٹیوں گھما، اڑی دل سا دعا کر مٹھڑی ماں، اڑی دل سا دعا کر۔
सुभान अल्लाह। तिलावती कलाम पाक हम और नात की ये पाकीज़ा फिजा हमारे दिलों को मुनव्वर कर चुकी है। अब हम इस तकरीब के असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे रहनुमा, हमारे मौसिम, हमारे इंचार्ज हेडमास्टर साहब को स्टेज पर मदऊ करना चाहेंगे ताकि वो हमारे इस तारीखी दिन पर हमारी रहनुमाई को फरमाएं। सर जाहिद आपकी पुरजोर तालियों में सर जाहिद को दावत देते हैं। मेहरबानी आने की। और जितने टीचर्स उस्ताद नए आए हैं उनको वेलकम करते हैं अपने स्कूल में। थैंक यू। और मैं दावत देना चाहूँगा सर जाहिद के साथ ही इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने अनथक मेहनत, जिनकी दिन रात मेहनतों की वजह से और एक ख्वाब की वजह से ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, और वो फर्द वाहिद और कोई नहीं आपके और हमारे सर एहतिशाम ज़हीर के लिए पुरजोर तालियां कि वो आए और सर जाहिद को अजरक और टोपी का तोहफा पेश करें। आपकी पुरजोर तालियों में मोहतरम इंचार्ज हेडमास्टर सर जाहिद हुसैन साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम, मेरे प्यारे साथी तलबा और तमाम अजीज़ व गिरामी मेहमानान, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये सकाफती दिन मनाने का मकसद सिर्फ सिंधी कल्चर के जश्न को मनाना नहीं है, बल्कि ये हमारे कौमी तशक्कुस के एक अहम पहलू को समझने का दिन भी है। पाकिस्तान कोई एक फूल नहीं है, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून, महाजिर, हर कौमियत अपना एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग खूबसूरती लिए खड़ी है। जैसे एक वालिदैन की औलादें, माँ बाप की सभी औलादें तो एक जैसी नहीं होती ना, किसी की आंखें अलग, किसी के बाल अलग, किसी का कद अलग, तो किसी का रंग अलग, लेकिन होते सब एक ही खानदान के फर्द हैं। इसी तरह हम भी पाकिस्तानी हैं, हम तमाम कौमियत से मिले जुले एक अजीम खानदान है, खानदान पाकिस्तान। और इस खानदान के अंदर एक छोटा सही लेकिन एक खूबसूरत खानदान और है, और वो है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन नंबर 1 का। और इस गुलदस्ते के अंदर हालिया दिनों में एक इंतहाई खूबसूरत इजाफा हुआ। हमारे साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुश्किल तरीन इम्तिहानात पास और इंतहाई काबिल असातिज़ा शामिल हुए। मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन से बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता इन्हें इसके साथ खुश आमदीद कहने का। मैं प्रोग्राम को आगे रवा रखने के लिए गुजारिश करूंगा सर शाहरुख से। बहुत बहुत शुक्रिया सर एहतिशाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ सर तारिक से कि वो स्टेज पर आए और सर एहतिशाम से अजरक और टोपी का अजरक और फूल जो है वो रिसीव करें। सर तारिक, आपकी पुरजोर तालियों में सर तारिक। बेटा आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, कंजूसी कर रहे हो आप लोग, थक गए क्या? तमाम हाज़रीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम।
इतना मान सम्मान देने का बहुत शुक्रिया। I hope this belief will continue after this event, क्योंकि मान सम्मान अगर सिर्फ महफिल तक कायम रहे तो ऐसे मान सम्मान का कोई ना असर है ना कोई फायदा है। मैं उम्मीद पूरी रखूंगा कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो तादाद हमारे पास असातिज़ा किराम की हो चुकी है, वो आपस में एक दूसरे की इज्जत का, एक दूसरे के वकार का, एक दूसरे की हुर्मत का जरूर ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है GBSS नंबर 1 में इस किस्म का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। तमाम जो इस प्रोग्राम को पेश करने वाले लोग हैं, जिनकी इस प्रोग्राम के लिए काविशें हैं, मेहनतें हैं, वो काबिल सताइश हैं। आज ये प्रोग्राम छोटे से पैमाने पर है क्योंकि चंद लोगों की इसमें काविशें मुझे नजर आई हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर इसको मिलकर तमाम असातिज़ा किराम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा अच्छा और इससे भी कहीं ज्यादा भरपूर और रंगीन प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज को, और अच्छा वैसे ये सरफराज को ही दे दें क्योंकि सरफराज में माशाल्लाह से कमीशन बात करके आए। एक मरतबा सरफराज के लिए जोरदार तालियां। सरफराज हमारे मोहतरम सर शहरियार हमें सिंध की दास्तानी कदीम सुनाएंगे। सर शहरियार। जोर तालियों में सर शहरियार। लगता है प्राइमरी वाले बच्चे खुश नहीं है भाई। आपके टीचर आ रहे हैं, तालियों की आप लोग उससे प्यार से पढ़ाते, इसकी शफकत से पढ़ाते हैं। तलबा और माइक काम नहीं कर रहा शायद। असातिज़ाने किराम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिंध की मुसलमानों के हवाले से कुछ बताऊंगा। सिंध में मुसलमानों की आमद। मुसलमान जे हिक खलीफो मरवान बिन हकम हो, उनके पैरोकारन मां हिक हजाज बिन यूसुफ हो, जे का मदीना जो गवर्नर हो। केतिरो ई ममलिकतन जो सरबराह मुस्लिम ऐं ॿियनि मुस्लिम उनजे दीनी ऐं इल्मी ख़िदमतनि जे वजो सां अव्हांखे वॾो तहाइफ़ ॾींदो हो। हिकु ॾींहुं को अरब ताजिर पंहिंजे अहलो अयाल खां वठंदो हो। जीअं सिंध में दाख़िल थियो त देवल जे मक़ाम ते समंद्री कज़ाकनि जे हमलो खे क़ैद में आणींदो ऐं उनजो वॾो सामान लूट करे जेल में हजाज जा तहाइफ़ हुआ। मुसलमाननि में हिकु औरत हजाज के आवाज़ ॾींदो। हजाज मक्का मदीना जो मुतवली ऐं इराक़ जो गवर्नर हा। उनजे सदा ते लबैक कहा। सिंध जे हुक्मरान राजा ताहिर के लूट जो माल ऐं कैदियुनि जी आज़ादी ऐं पहिरीं कज़ाकनि खे सज़ा ॾिनो जो चयो। अवां उनखे न कयो। जहिड़ो मोहम्मद बिन कासिम जी क़यादत में राजा ताहिर जी हुकूमत के पलटाईंदो लाइ फ़ौज ऐं असलो का देवल पहुचो। अवां मंजनीक जे ज़रियो संगबारी कयो ऐं राजा ताहिर जी फ़ौज के शिकस्त दी टेबल ते कब्ज़ो कयो। अवां ताजिरनि ऐं उनजे अहल अयाल के रिहा किया था। मोहम्मद बिन कासिम उन खां बाद सारा सिंध जनूबी पंजाब में मुल्तान ताईं सारो इलाइक़ो फतह कयो ऐं अरब सल्तनत जा हिकु सूबा थियनि। हू 1014 ईस्वी ताईं हिकु सूबो हो, मानी 312 साल सूबा रहा। नया हुक्मरान मुसलमाननि ऐं ॿियनि मुसलमाननि खां बराबर ऐं रहम दिलाना बर्ताव करनि, जिन करे बेशतर माण्हुनि इस्लाम क़बूल कयो। इन ज़माननि में अरब जे करे बरे सग़ीर में तिजारत ऐं सक़ाफ़त खे फ़रोग़ हासिल था ऐं माण्हुनि खे हिकु ॿियनि खां
जण जो मौक़ो मैसर थियो मुसलमाननि इदारनि ऐं फ़न खे ॾाढी तरक्की दी। शुक्रिया। अब इस तकरीब में नए रंग भरने के लिए आ रही हैं हमारी हर दिल अजीज मिस फहमीदा की बेटी ईशान। डॉक्टर ईशान की पुरजोर तालियों में डॉक्टर ईशान। जोरदार फिर बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसी अच्छी 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 अच्छी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा सिंधी जो है सकाफत का सर ने जैसे आपसे मतलब सवाल किया कि आप जानते हैं कि सकाफत किसको कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सकाफत के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो आती है चीज़ वो हमारी ज़बान आती है, हमारा लिबास आता है, हमारा अदब, हमारी तारीख और हमारा रहन सहन, हमारा आर्ट की और जो है जो भी फन तमीरात होते हैं हमारे, उसके अलावा खाने हमारे आ जाते हैं, इसमें त्यौहार आ जाते हैं। इन सब के मजमूए को हम कल्चर कहते हैं या सिंधी उर्दू में सकाफत कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मुझे इस स्कूल में सर्विस जो है वो देते हुए इस साल जो है वो चौथा साल है, लेकिन फर्स्ट टाइम इस साल यहाँ इस स्कूल में जो है वो सकाफत डे का दिन जो है मना रहे हैं। और ये जो भी मतलब क्रेडिट है इसके मास्टर माइंड जो है वो हमारे दोस्त एहतिशाम ज़हीर साहब हैं। सब जो है मतलब शुरुआती जो आइडिया था वो उनका था, उसके बाद हम सब ने जो है मतलब मेहनत की है। मैं चाहूँगा कि सर एहतिशाम के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, इंसान जहाँ पर जन्म लेता है, जहाँ पर बचपन के खेल खेलता है, तो उस जगह से उस मट्टी से प्यार होना ये एक फितरी अमल है। ठीक है जी। वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है, और सकाफत जो है वो वतन से मोहब्बत की एक निशानी है या उसका एक हिस्सा है। और हमारी जो अजरक और टोपी है ये हमारी सकाफत के लाजमी जुज़ है। अजरक की तारीख जो है वो उतनी ही कदीम है जितनी मोहनजोदड़ो की जो तारीख कदीम है। मोहनजोदड़ो के जो आधार मतलब रिमेन्स हैं उसमें ब्रिटिश का जो है मूर्ति मतलब मिली थी, उसने एक कलर की चादर पहनी हुई थी, ओढ़ी हुई थी। वो डिज़ाइन जो है अजरक से मिलता जुलता है। तकरीबन 5-6 हज़ार साल कदीम अजरक की जो है वो तारीख है। ठीक है, और हम सिंधी जो है मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जब किसी को इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, तो उसको अजरक पेश करते हैं। और सकाफत में आती है एक चीज़ और, हमारी जो मतलब रिवायात है, मेहमान नवाजी सिंध की बुनियादी एक मतलब रिवायत है, या आप मतलब उसको कहने की अलामत है। दुनिया में सिंध की जो है वो मेहमान नवाजी के हिसाब से पहचाना जाता है। हमारे तरफ पर कोई दुश्मन भी आता है तो उसको हम पानी पिलाते हैं, उसका हम एहतराम करते हैं। ठीक है, और मुसाफिर हमारा यहाँ पर भाई होता है। इस चीज़ की वजह से सिंध जो है दुनिया में पहचाना जाता है। शुक्रिया सर शाहरुख एंड मिस मरियम जी। तो
تو اب یہاں سے ہمارا پروگرام آگے چلے گا. تو اس سے پہلے چونکہ آپ سندھی ثقافت ہے لیکن میں جو ہے اب یہاں پہ رہائش تو سندھی ہے لیکن پیدائش سے میں پنجابی ہوں. تو ایتھے بیٹھے سارے لوگوں میں اپنے پنجابی انداز سے ویلکم کرنا چاہوں گی. تے پنڈال چ موجود تمام سٹاف ممبران تمام بچیاں نو میرے والوں جی آیا ہے. اب ہم پروگرام کے نئے حصے میں داخل ہوتے ہیں. جی ہاں، اور کیا آپ جانتی ہیں کہ سندھ کی روح کو سب سے بہترین انداز میں کس نے بیان کیا ہے؟ جی جی بالکل. بے شک میں پنجابی ہوں لیکن سندھ کے بارے میں بھی معلومات رکھتی ہوں. تو سندھ میں ہمارے جو روح کی ترجمانی کرنے والے شاعر ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں. بالکل. اور آج ہمارے طالب علم علیان اویز ہمیں اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے. آپ سب کی پرزور تالیوں میں علیان اویز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرے اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور یہاں موجود تمام سامعین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں اپنی ثقافت کے دن کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، خصوصاً صوبہ سندھ کی ثقافت. سامعین محترم، صوبہ سندھ کی ایک ایسی مشہور شخصیت جنہیں ہم مالک لال لطیف کے نام سے جانتے ہیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1689 میں پیدا ہوئے. وہ ایک عظیم صوفی، درویش اور سندھی زبان کے ایسے شاعر ہیں جنہیں ہم مالک لطیف اور خین لطیف کے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں. آپ کا خزانہ علم شاذ و رسالو ہے جو 30 سر اور ہزاروں اشعار پر مشتمل ہے. اس میں آپ نے محبت، انسان دوستی، رواداری اور اتحاد کا وہ پیغام دیا ہے جو آج بھی ہمارا رہنما ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں سندھ کے کسان، محنت کش، دستکار اور ماہی گیر کی ہر دکھ سکھ کو بیان کیا ہے. وہ کئی زبانوں کے جاننے والے تھے لیکن انہوں نے اپنا پیغام سندھی عوام کی زبان میں دیا تاکہ ہر شخص اس کی روشنی سے فیضیاب ہو سکے. آخر میں شاہ صاحب کی وہ دعا ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو انہوں نے اپنے وطن کے لیے کی: اے میرے مالک، سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا. آمین. وما علینا الا البلاغ. جی تو سر، شاہ لطیف کے بارے میں سن کر تو دل چاہ رہا ہے کہ سندھ کی گلیوں میں گھمائیں، اجرک اوڑھ لیں اور سندھی گیت گانے لگیں. یہی تو سندھ کی ثقافت کا جادو ہے، اور یہ جادو صرف کپڑوں اور موسیقی تک محدود نہیں ہے. اس کے اپنے اصول، رسوم اور فلسفہ بھی تو ہے نا. جی جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی اور محبت فلسفے میں شامل ہے. تو یہاں پہ سچائی اور محبت فلسفے کی بات ہو تو ایک اور نام آتا ہے سچل سرمست کا، جنہوں نے 7 زبانوں میں محبت کا پیغام لکھا اور سچ بولنے میں اپنا نام ہی سچل رکھ لیا. ان کا نام سچل سرمست ان کے سچ بولنے کی عادت کی وجہ سے تھا. تو آئیے اب سنتے ہیں جماعت حشد البی سے ہمارے طالب علم عبد الرافع کو. آپ سب کی پرزور تالیوں میں کلاس 8B سے عبد الرافع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سندھی کلچر ڈے کے موقع پر حضرت سچل سرمست کے بارے میں تقریر. سندھ کی روحانی تاریخ میں جہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا نام روشن ہے، وہیں ایک اور چمکتا ستارہ حضرت سچل سرمست کا ہے. آپ سندھ کے عظیم صوفی شاعر، خدا کے مجذوب اور انسانیت کے محسن تھے. سچل سرمست 1739 میں خیرپور کے قصبہ درازہ میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام عبد الوہاب تھا، لیکن بچپن سے سچ بولنے کی وجہ سے سچل مشہور ہوئے. قرآن پاک حفظ کرنے کے باعث آپ کو حافظ عبد الوہاب بھی کہا جاتا تھا. آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ نے 7 زبانوں سندھی، سرائکی، فارسی، عربی، اردو، پنجابی اور بلوچی میں شاعری کی، لیکن زیادہ تر کلام سندھی سرائکی میں ہے
आपका पैगाम मोहब्बत, रवादारी, सच्चाई और इंसानी दोस्ती का था। सच्चर सरमस फितरत के दिलदारा थे। आप जंगलों में तन्हाई पसंद करते, परिंदों और जानवरों से मोहब्बत रखते। आपकी शायरी में इश्क हकीकी का जज्बा, रयाकारी पर तनकीद और सादा जिंदगी का पैगाम मिलता है। आप फरमाते थे कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दो, तभी खुदा तक पहुंचोगे। सच्चर सरमस ने सारी उम्र सच और मोहब्बत की राह दिखाई। आज भी इनका कलाम सिंध की सकाफती और रूहानी दौलत है, जो हमें भाईचारा, इत्तेहाद और सादा जिंदगी का दर्स देती है। हमारे मौजूद टीचर हजरात और ख़वातीन और हमारे स्टूडेंट्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड भली करे आया। आज हम ये एकता डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आप सबका जमा होना और हम सबका साथ यहाँ बैठना इसी चीज़ का सबूत है कि एकता इसी को कहते हैं। कल्चर डे सिर्फ एक ज़ुबान का नहीं होता। कल्चर डे हर ज़ुबान का होता है, जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ होते हैं। हमारे पाकिस्तान में हर ज़ुबान का वो किरदार जिसने अदा किया और आज हमारे साथ है। मैं सबको सलाम और भली का कह रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो तारीख की बात आती है, सिंध की तारीख की, आज से 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो लाड़काना उसी से मुस्तलक है, जहाँ पर जितने भी नवादरात, जेवरात और वहाँ की घरेलू अशिया, ये सब चीज़ बताती हैं कि हमारा जो कल्चर है कितना पुराना है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ हमें यही पैगाम देती है कि हमारा जो कल्चर, हमारी ज़ुबान, हमारी तहजीब 5000 साल पुरानी है और अभी तक चलती आ रही है। कल्चर डे तो सेलिब्रेट होता था, सिंधी जितने भी थे, हमारी दूसरी ज़ुबानें जितने भी थे, सेलिब्रेशन थी, मगर उसको प्रमोट और हम सबको आगे लाने वाला 2007 में एक इंसान था जो काविश रूप से ताल्लुक़ रखता था, अली का, जिसने हम सबको एक जगह पे इकट्ठा किया और बोला कि हमारा कल्चर डे सेलिब्रेट होना चाहिए। और आज उसी की वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। हमारी हुकूमत हमारे साथ होती है। हमारे कल्चर डे में, सेलिब्रेशन में सिंध हुकूमत का बड़ा एक किरदार अदा होता है, जो हमारे साथ यहीं पर कल्चर डे सेलिब्रेट होता है। आप सबकी मेहरबानी जो आप सब ने इसमें हिस्सा लिया, मैं सबका दुआगो हूँ हमेशा के लिए। हमारा जो कल्चर डे और जितनी टीम ने यहाँ पर इस चीज़ की बुनियाद रखी, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि हमारे स्कूल के बारे में भी कि हमारे पास कल्चर डे सेलिब्रेट होना चाहिए और आइंदा इंशाल्लाह हमेशा के लिए होता रहेगा। आखिर में मैं चंद लफ्ज़ बोलूँगा। ये सिंध दुआ, ये सिंध दुआ, ये धरती मोची जिन दुआ, ये सिंध दुआ, ये सिंध दुआ, ये धरती मोची जिन दुआ, पली तपेर परे कर, ये धरती मोची नंगुआ। नाराए सिंध, नाराए सिंध, ये सिंध, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नाराए 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 सिंध। शुक्रिया, मेहरबानी। आए हैं, उन्होंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने उसको याद करने की या रखने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिसको जवाब आए वो अपना हाथ उठाएगा। मैं आपसे आसान आसान सवाल करूंगी, ठीक है? चलिए, सबसे पहला सवाल जिस बच्चे को आता हो जवाब वो हाथ उठाएगा। पाकिस्तान या सिंध के सबसे अजीम सूफी शायर कौन से हैं? सिंध के अजीम सूफी शायर कौन हैं? अब्दुल्ला, आप बताइए। शाह लतीफ अब्दुल बटाई। शाह अब्दुल लतीफ बटाई, शाबाश, उनके लिए तालियां बजाइए। बेटा, खाने पीने का शौक किस किस को है? हाथ उठाइए। खाने पीने का शौक किस किस को है? सबको ही है। चलिए बताइए, पाकिस्तान की मशहूर ग़िज़ाओं के नाम बताइए। किसी 3 ग़िज़ाओं के नाम बता लीजिए। बिरयानी। और बताइए। और बिरयानी, और हाँ, और एक और बताइए। दाल चावल। शाबाश, बिरयानी, वेरी गुड। दाल चावल। बताइए।
पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताइए, पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम। मोहम्मद अल्लामा इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, शाबाश, इनके लिए तालियां बजाइए। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जालंधरी। शाबाश, हफीज जालंधरी ने लिखा, इनके लिए तालियां बजाइए। चलिए, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? हाथ उठाएं, हाथ बताइए, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चले बेटा, दूसरी बच्ची बता दे। ऐसे नहीं, चमेली। चमेली, शाबाश, इनके लिए तालियां बजाइए। पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली है। स्टाफ मेंबर्स। हाँ बस क्लोजिंग, आवाज़ ऊंची कर दो।